Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss contribution of LP Vidyarthi in Indian anthropology. So let's start. LP Vidyarthi. His full name is Lalit Prasad Vidyarthi. He was born in 1931 and died in 1985. He did his PG postgraduate in 1953 from Lucknow University and he got Indrajit Singh Gold Medal. Then in 1953 he appointed as lecturer at Ranchi University. Uh, from 1953 to 56 he worked as lecturer and then he joined again as HOD in 1958 after his PhD from Chicago University. He did his PhD from Chicago University, which was completed in 1958 under the supervision of Robert Redfield. He was awarded Ford Foundation and University of Chicago Fellowship. And this PhD work was among the Sauriya Pahadia of Rajmahal Hills. Sauriya Pahadia, Mal Pahadia जो tribe है राजमहल हिल की उनके among इनका ये वर्क था. Then Ranchi University got the status of DSA, that is Department of Special Assistance, in 1978 and establishment of CAS, that is Center of Advanced Study, in 1985. अंडर हिज सुपरविजन मीन्स जब ये रांची यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे थे तब रांची यूनिवर्सिटी में जब वो अगेन वो ज्वाइन किए 1958 उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी को डीएसए का स्टेटस मिला 1978 में एंड 1985 में सीएस सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी का स्टेटस मिला जिसके बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो उनकी डेथ हो गई 1985 में तो but soon after this he was died due to severe illness. Then he was founder member of ICSSR. ICSSR जो न्यू दिल्ली में है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च उसके फाउंडर मेंबर थे एंड मेनी अदर कमिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया Committee of Backward Classes, Scheduled Castes, Development of Primitive Tribes of Andaman and Nicobar Islands, and Committee of Central Tribal Research, etc. तो डिफरेंट कमिटीज के फाउंडर मेंबर थे और आईसीएसएसआर के थे देन ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ फोकलोर सेक्शन जो बॉम्बे में है फोकलोर सोसाइटी ऑफ इंडिया वहाँ के वो प्रेसिडेंट थे देन एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी सेक्शन के आईएससी जो इंडियन साइंस कांग्रेस है या इंडियन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड एथनोलॉजिकल साइंसेज an international congress of anthropological and ethnological sciences इन सभी के वो प्रेसिडेंट थे and he was chairman of AISSC team of tribal labor committee of identification of the primitive tribes task force on development of tribal areas etc. He was also editor of various journals like Journal of Social Research, Indian Anthropologist, Research Journal of Ranchi University, Sociological Bulletin, Journal of Folklore, etc. Here are some major publications of LP विद्यार्थी उन्होंने बहुत मतलब इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में उनका बहुत बड़ा योगदान है स्पेशली उन्होंने जो उनके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पॉपुलर उनका योगदान है इट वाज सैक्रेड कॉम्प्लेक्स एंड नेचर मैनस्पिरिट कॉम्प्लेक्स एंड बिसाइड दिस वो जो इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी या इसमें मतलब अर्बन एंथ्रोपोलॉजी में भी उनका योगदान है ठीक है तो सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू क्या ये मोस्ट पॉपुलर बुक है जो एलपी विद्यार्थी के द्वारा लिखी गई थी 1961 Then second book is the Malay Nature Manuscript Complex in Hill Tribe of Bihar 1963. Cultural Contours of Tribal Bihar 1964. Ghagra, a village in Chota Nagpur was a tribal village studied by Vidyarthi in 1966. Then Cultural Configuration of Ranchi 1969. Socio-cultural implications of industrialization in India, a case study of tribal Bihar. Then Dynamics of Tribal Leadership in Bihar, students' unrest in Chota Nagpur, tribal culture of India, peasant organization in India, rise of anthropology in India, Horizon today it was a study on caste, scheduled caste, then sacred complex in Kashi, हिंदू गया के साथ ही उन्होंने काशी पे भी एक बुक लिखी थी विद बी एन सरस्वती एंड माखन झा देन द खारिया देन एंड नाउ ये एक री स्टडी थी
देन ट्राइब पर, खारिया ट्राइब पर, देन ट्रेंड्स इन बर्ड एंथ्रोपोलॉजी एंड राइज ऑफ बर्ड एंथ्रोपोलॉजी। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का जो डेवलपमेंट कैसे हुआ, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एज वेल एज ट्रेंड्स इन बर्ड एंथ्रोपोलॉजी एंड राइज ऑफ बर्ड एंथ्रोपोलॉजी पर भी उनका योगदान था और उस पर इन्होंने ये इस तरह का कंट्रीब्यूशन दिया। Here are some edited books by L.P. Vidyarthi. Anthropology and Tribal Welfare in India 1960 and Indian Anthropology in Action 1960, Aspects of Religion in Indian Society 1961, Leadership in India 1967, Applied Anthropology in India 1968, Tension, Conflict and Social Change in India 1968, then Essays in Indian Folklore 1973, Applied Anthropology and Development in India with B. N. Sahai. This book was edited in 1979. Then Research in Prehistory and Physical Anthropology in India with B. B. Lal and N.P.C. in 1978. Okay, so these are some edited books. So here are some major publications by L.P. Vidyarthi. These books are written by and these books are edited by L.P. Vidyarthi. कंट्रीब्यूशन और सैक्रेड कॉम्प्लेक्स स्टडी। सैक्रेड कॉम्प्लेक्स पे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। और सैक्रेड कॉम्प्लेक्स जो स्टडी थी इनकी, उस पर उन्होंने बुक लिखी थी सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया 1961 में। दूसरी बुक इनकी आई थी एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन इंडियन सोसाइटी, जो एक एडिटेड बुक थी और उसमें इनका एक पेपर था, एक आर्टिकल इन्होंने लिखा था जिसमें कि जो एक ट्राइबल विलेज है मुंडा विलेज, उस पर उन्होंने स्टडी किया था कि ट्राइबल विलेज में कैसे सैक्रेड कॉम्प्लेक्स होता है। देन थर्ड बुक जो आई थी देन माले नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इन हिल ट्राइब्स ऑफ बिहार। इसमें भी इन्होंने नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ सैक्रेड कॉम्प्लेक्स की भी बात की थी कि माले ट्राइब में कैसे सैक्रेड कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर उस विलेज में जो ट्राइबल पीपल है वो कैसे उनके अमंग सैक्रेड कॉम्प्लेक्स होता है। देन जो फोर्थ बुक है उनकी सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन काशी, वो उन्होंने बी एन सरस्वती माखनजा के साथ लिखी थी 1978 में। तो दीज आर 4 कंट्रीब्यूशंस ऑन सैक्रेड कॉम्प्लेक्स स्टडी बाय एल.पी. विद्यार्थी, जिसमें मेजर है हिंदू गया, सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया। इस पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन बोध गया अगर लिख देगा तो वो एल.पी. विद्यार्थी की बुक नहीं होगी, हिंदू गया ही उनका है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। तो सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया एंड सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन काशी, ये तो मेजर सेंटर्स जो है उसके सैक्रेड सेंटर्स हैं इंडिया के। तो उसमें तो ये 2 बुक्स थी और 2 ये जो है ट्राइबल पीपल्स पे थी, हिमालयन के सैक्रेड कॉम्प्लेक्स पे और एक मुंडा विलेज पे। तो ये 2 अदर स्टडीज हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे दूसरे जो धार्मिक जगहें हैं, इंडिया की धार्मिक संस्थान है या सैक्रेड प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस हैं, उनकी भी स्टडी की और शॉर्ट ट्रिप किया, जिसमें कि द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम, भुवनेश्वरम, हरिद्वार, ऋषिकेश, नॉर्थ से साउथ तक के जितने भी होली प्लेसेस थे उनकी वो उन्होंने विजिट की और ऑल्सो सम रूरल टेम्पल्स एंड बाथिंग सेंटर्स को भी स्टडी किया टू स्टडी सैक्रेड कॉम्प्लेक्सेस। And in his study of Malay tribe, the Malay nature man spirit complex, he also make an attempt to study sacred complex among the tribal Malays. He also organized a seminar on sacred complex at Ranchi यूनिवर्सिटी। तो ये जो आइडिया था सैक्रेड कॉम्प्लेक्स का वो आया था उनको रॉबर्ट रेडफील्ड का जो ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन था, वहाँ से उन्होंने ये आइडिया लिया था। और मिलर का भी जो स्टडी था कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस पे, कल्चरल सेंटर्स, कल्चरल स्पेशलिस्ट, वो जो कल्चरल वर्ड था उसको हटाकर इन्होंने यहाँ पर सैक्रेड वर्ड लिया इन टर्म्स ऑफ इंडिया। तो इंडियन सिविलाइजेशन को में स्पेशली इन्होंने हिंदू सिविलाइजेशन को ध्यान में रख के किया था, क्योंकि इनकी जो भी सैक्रेड कॉम्प्लेक्स की स्टडी है वो स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन एंड नॉट द इंडियन सिविलाइजेशन, ऐसा स्पेसिफिकली वहाँ पर बताया गया है कि जो विद्यार्थी की सैक्रेड कॉम्प्लेक्स स्टडी है वो हिंदू सिविलाइजेशन को ध्यान में रख के किया है, नॉट द होल इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हिंदू गया यहाँ पे वर्ड भी यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर दूसरे भी और धर्म है, पर हिंदू सिविलाइजेशन में जो सैक्रेड सेंटर्स हैं उनको ध्यान में रख के यहाँ पे सैक्रेड कॉम्प्लेक्स की स्टडी की गई थी। और अकॉर्डिंग टू विद्यार्थी सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इज अ हैप्पी सिंथेसिस ऑफ 3 उसके कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सैक्रेड ज्योग्राफी, एक पवित्र स्थान होता है जहाँ पर जो लोगों की नज़रों में वो होली प्लेस होता है, वहाँ का
जब वहाँ का जो लैंड है या आसपास की जो रिवर्स हैं, जो भी वहाँ का माउंटेन, वो हर चीज़ वहाँ का होली माना जाता है, पवित्र माना जाता है। पानी से लेके हर चीज़, वहाँ का वातावरण सब पवित्र माना जाता है। तो एक सैक्रेड ज्योग्राफी होती है। देन सैक्रेड स्पेशलिस्ट होते हैं जो वहाँ पर कुछ रिचुअल या परफॉर्मेंसेस देते हैं। लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ होती है। तो इस तरह सैक्रेड स्पेशलिस्ट होते हैं जो अपनी पूजा, जो धार्मिक गतिविधियाँ वहाँ पे करते हैं। और सैक्रेड परफॉर्मेंसेस या रिचुअल्स या जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब सैक्रेड परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो तीन का ये कॉम्बिनेशन है, सैक्रेड ज्योग्राफी, सैक्रेड स्पेशलिस्ट एंड सैक्रेड परफॉर्मेंसेस। और ये रिफ्लेक्स करता है कॉन्टिन्यूटी, कॉम्प्रोमाइज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस। ठीक है, तो सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इट रिफ्लेक्ट्स द continuity, compromise and combination between the great and little traditions। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सैक्रेड कॉम्प्लेक्स क्या है और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, देख लीजिएगा। देन कंट्रीब्यूशन ऑन नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स स्टडी, इस पे भी हमने एक वीडियो डाला है नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स पे, वो आप देख लीजिएगा। और ये नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स पे इन्होंने जो बुक लिखी थी, द माले एट द नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इन हिल ट्राइब ऑफ बिहार, जो माले ट्राइब है जिसको सौरिया पहाड़िया भी कहते हैं, ये जो ट्राइब है जो कि उस समय राजमहल हिल्स में रहती थी और बिहार की एक ट्राइब है, 1963 में इन्होंने स्टडी किया था। इसमें इन्होंने नेचर और ह्यूमन का इंटरेक्शन पे स्टडी किया था। दिस स्टडी वाज बेस्ड ऑन नेचर एंड मैन इंटरेक्शन। ठीक है, और नेचर, मैन और फिर जो स्पिरिट्स वहाँ पर उस नेचर में रहती है, रिसाइड करती हैं, जो एंसेस्टर वर्शिप से जुड़ी उनकी जो बिलीफ है, उससे जोड़कर इसको देखा गया इस बुक में। तो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इन हिल ट्राइब ऑफ बिहार, जो ट्राइबल पीपुल है बिहार के माली ट्राइब, जो एक हिल कल्टिवेटर्स हैं, उनके अमंग ये स्टडी की गई। और ये हिल ट्राइब्स जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, जिसको कल्लू कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो कल्टीवेशन टाइप है उनका, उसमें वो कैसे गॉड को मीन्स मतलब की वर्शिप करते हैं, अपने एंसेस्टर्स की वर्शिप करते हैं। और फॉरेस्ट लैंड जो उनका है, जो नेचर है, उसमें कैसे वो बिलीव करते हैं कि उनके गॉड वहाँ पर रिसाइड करते हैं, जो आइडिया ऑफ टोटेमिज्म कहा जा सकता है। तो नेचर में उनके गॉड रिसाइड करते हैं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो गॉड हैं, जो वो या तो उनके नेचर में रिसाइड करते हैं, या तो उनके जो एंसेस्टर्स डीटीज होते हैं, जिनको वो घरों में भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके घर के किसी कोने में वो उनका एक प्लेस होता है, और उनके गांव के एरियाज में भी उनके डीटीज रिसाइड करते हैं। तो इस तरह नेचर से जोड़कर देखते हैं ट्राइबल में। तो नेचरिज्म जो है, बिलीफ इन नेचर, वो, और ह्यूमन का इंटरेक्शन, उसके जो सबसिस्टेंस के लिए वो अपने नेचर पर जो डिपेंड रहता है डिफरेंट चीज़ों के लिए, चाहे वो फॉरेस्ट में हंट करता है, जब फ्रूट्स या नेचर की दूसरी चीज़ों को कलेक्ट करता है। तो इस तरह नेचर मैन इंटरेक्शन, और फिर बिलीफ कि वहाँ पर कुछ स्पिरिट्स रहती हैं नेचर में, जो कि बेनिवोलेंट और मेलिवोलेंट दोनों स्पिरिट्स हो सकती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, और उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसकी लाइफ में, वो कैसे उनकी रक्षा करती, कैसे प्रोटेक्ट करती है, और अगर कुछ गलत होता है तो वो कैसे होता है। तो ये सारा कुछ स्टडी किया था इस बुक धमालियर नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में। और इसी में इन्होंने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स की भी स्टडी की थी, जैसा कि हम लोग पहली स्लाइड में मतलब डिस्कस किया कि जो माले ट्राइब में कैसे सैक्रेड कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ गोसाई होते हैं जो कि सैक्रेड स्पेशलिस्ट का काम करते हैं, और उनकी कुछ बिलीफ होती है। सैक्रेड ग्रुप्स जो फॉरेस्ट एरिया है, वो सैक्रेड ज्योग्राफी का काम करते हैं। देन सैक्रेड परफॉर्मेंसेस, कुछ वो सेक्रीफाइसेस देते हैं, एनिमल की, बफेलो की, गोट की, एग की, वो सब सैक्रेड परफॉर्मेंसेस हो गई। या कुछ चढ़ाते हैं पूजा में, लीकर चढ़ाते हैं, राइस चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो ये सारा कुछ स्टडी किया सैक्रेड कॉम्प्लेक्स में। और नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में ह्यूमन मैन का इंटरेक्शन और उनकी बिलीफ इन स्पिरिट, ये सारा कुछ मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको उन्होंने स्टडी किया अमंग द माले ट्राइब or the Sauriya Paria tribe of that is the hill tribe of Bihar, and this study was made in 1963. This study was based on methodological approach to study tribal belief of a way of life, their ecological setting, social institutions, जो उनके marriage, family, सारे institutions हैं, उसको भी उन्होंने उस बुक में स्टडी किया, एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। ठीक है, ये सारा कुछ स्टडी किया।
इस बुक में, नेचर में स्प्रेड कॉम्प्लेक्स स्टडी में। और ये अलग से भी इस पे वीडियो है, आप देख लीजिएगा। देन कंट्रीब्यूशन इन ट्राइबल स्टडीज। अब ट्राइबल स्टडीज में तो मालेर वाला भी एक ट्राइबल स्टडी ही है, नेचर में स्प्रेड कॉम्प्लेक्स भी है, और ट्राइबल स्टडी में भी ये एक आएगा। दूसरे जो ट्राइबल स्टडीज उनके द्वारा की गई उसमें कल्चरल कंटूर्स ऑफ ट्राइबल बिहार 1964। ज़्यादातर उनकी स्टडीज बिहार की ट्राइब्स, बिहार की कास्ट कम्युनिटी या बिहार की जो अर्बन सोसाइटी उसी पर है। ठीक है, तो कल्चर कंटूर्स ऑफ ट्राइबल बिहार 1964। घाघरा एक ट्राइबल विलेज है, छोटा नागपुर, उस पर उन्होंने स्टडी किया 1966। देन ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, ये बुक है बीके राय के द्वारा 1976, और ये जो आपकी टेक्स्ट बुक के रूप में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें कि ट्राइबल कल्चर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, चाहे उनका वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उनके सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, फैमिली मैरिज किनशिप हो, फोकलोर हो, रिलीजन हो, बिलीफ हो, सारा कुछ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सब कुछ इसमें ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। तो ये कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छी बुक है, ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, और इसको इन्होंने लिखा था बीके रॉय के द्वारा के साथ 1976 में। देन खारिया देन एंड नाउ, ये एक बुक है जो खारिया ट्राइब पे है, और इसमें भी उन्होंने री स्टडी किया था खारिया की, देन मीन्स पास्ट में कैसे थे, और फिर उन्होंने बाद में देन खारिया देन एंड नाउ, ये स्टडी है अलॉन्ग विद B.S. Upadhyay, and it was published in 1979. Then some articles are also written on tribal studies, जैसे कि cultural types in tribal India with some special reference to tribal Bihar। इसमें इन्होंने cultural types में 4 cultural types दिए थे। tribal Bihar में इन्होंने पाया कि 4 cultural types होती हैं। पहला इन्होंने दिया forest hunting type होती है, जिसमें कि बिरबोर की बात की। देन उन्होंने कल्टीवेशन टाइप बताया, जिसमें कि इन्होंने हिल कल्टीवेशन में मालेर का जिक्र किया, और सेटल्ड कल्टीवेशन में ओराव, मुंडा एंड हो की बात की। ठीक है, देन इन्होंने बात किया आर्टिशन टाइप, जिसमें कि कुछ लोहार, मोहालीस, कुछ ऐसी ट्राइब्स होती हैं, उनकी बात की। एंड देन फोर्थ टाइप बताया कि एग्रीकल्चरल एंड जो इंडस्ट्रियल लेबर्स होते हैं अर्बन एरियाज में या इस तरह, उनकी बात की। तो 4 टाइप उन्होंने बात की। सबसे पहला जो हंटिंग गैदरिंग, then settled agriculture and shifting cultivators, then third is artisan type, and fourth is labor type। ठीक है, तो ये 4 टाइप बताए कल्चरल टाइप्स इन ट्राइबल इंडिया में। देन कल्चरल डाइवर्सिटीज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये एक आर्टिकल लिखा था 1971 में, जो अंडमान निकोबार आइलैंड की जो ट्राइब्स हैं उसके ऊपर स्टडी किया था इसमें। देन रांची ट्राइबल्स इन अंडमान निकोबार, ये भी एक आर्टिकल लिखा था इन्होंने, जिसमें स्पेसिफिकली जो बिहार के, जो रांची के जो इस समय तो झारखंड में है रांची, उसमें बिहार में था, तो बिहार के जो ट्राइब्स थे रांची से स्पेशली जो बिलोंग करते थे, वो ट्राइब्स जो अंडमान निकोबार में माइग्रेट कर गए, जैसे उरांव, मुंडा, ये ट्राइब्स जो वहाँ पे वर्क करने के लिए या एज ए लेबरर जो काम करने के लिए वहाँ गए हुए थे, उनकी लाइफ पे इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, रांची ट्राइबल्स इन अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया इनका ट्राइबल स्टडीज पे। देन नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है उनका हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्रेंड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस में, जिसमें उन्होंने बुक लिखी थी राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया, सोशल साइंस ओरिएंटेशन 1977 में, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी 1980 में, राइज ऑफ वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी 1980 में, एंड सम आर्टिकल्स आर रिटन, दैट इज सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस इन इंडिया 1966, researches in social science in India 1966, social anthropology in India since independence 1972, and report on tribal studies in India 1972. So these are some articles and books written by Vidya. In his article Social Anthropological Researches in India, which was published in 1966, इस पे इन्होंने जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी जो डेवलपमेंट हुआ उसकी बात की थी, और उन्होंने 3 फेजेस की बात की थी जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें उन्होंने फॉर्मेटिव पीरियड, फॉर्मेटिव फेज की बात की, और इनके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिव फेज स्टार्ट होता है 1774 से, जो एंड होता है 1919 में। देन दूसरा इनका कंस्ट्रक्टिव फेज था जो 1920 से चलकर 1949 तक चलता है, एंड तीसरा इनका फेज था एनालिटिकल, जो कि 1950 से सो ऑन, मतलब
चलता है। ये था विद्यार्थी के अकॉर्डिंग, और इसके अगेंस्ट मजूमदार ने अपना मतलब क्लासिफिकेशन दिया था 3 फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया का। और उनके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिव पीरियड तो सेम था 1774 से, वो भी मानते हैं कि ये मतलब इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का जो फॉर्मेटिव फेज है वो स्टार्ट होता है 1774 से ही विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो दोनों का मानना सेम है कि फॉर्मेटिव पीरियड स्टार्ट तो होता है 1774 से, लेकिन मजूमदार कहते हैं 1911 तक ही चलता है ये। और 12 से स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्टिव फेज, जो कि चलता है 37 तक। कंस्ट्रक्टिव फेज को मजूमदार मानते हैं कि जो मुंडा ट्राइब पर एस.सी. रॉय ने मोनोग्राफ लिखा था उससे स्टार्ट होता है, जबकि विद्यार्थी का मानना है कि 1920 से स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्टिव फेज विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीचिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 1920 से जब एंथ्रोपोलॉजिकल टीचिंग स्टार्ट होती है, उससे वो मानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव फेज स्टार्ट होता है, मीन्स विद्यार्थी का ये मानना है। जबकि मजूमदार का मानना है कि 1912 से कंस्ट्रक्टिव फेज स्टार्ट होता है, जो कि 1937 से तक चलता है। और 1938 ऑनवर्ड्स ये क्रिटिकल फेज बताते हैं मीन्स मजूमदार, जबकि इनका थर्ड फेज एनालिटिकल फेज है, जो कि 1950 से स्टार्ट होता है विद्यार्थी का। ठीक है। और क्रिटिकल फेज ये तब बताते हैं जब 1938 में इंडियन एंड ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक साथ मीट किए थे इंडियन साइंस कांग्रेस लाहौर में सिल्वर जुबली के ओकेजन में 1938 में। और उसी के एक साल पहले इनकी 4 ट्राइब पर एक मोनोग्राफ भी पब्लिश हुआ था मजूमदार का। ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक मेरा वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, उस पर आप देख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स वहाँ पर दी गई हैं कि विद्यार्थी का क्या मानना था, एंथ्रोपोलॉजी जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री है, एंड मजूमदार का क्या मानना था। ठीक है। तो ये इनका जो योगदान था इन केस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, वो कुछ आर्टिकल्स एंड बुक्स के फॉर्म में देख सकते हैं। देन वर्ड एंथ्रोपोलॉजी में भी ट्रेंड्स क्या चल रहे थे, और कैसे उसका राइज हुआ, ओरिजिन हुआ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ हुआ, ये सारा कुछ उन्होंने राइज ऑफ वर्ड एंथ्रोपोलॉजी एक बुक लिखी थी 1980 में ही, 2 बुक आई थी, ट्रेंड्स इन वर्ड एंथ्रोपोलॉजी एंड राइज ऑफ वर्ड एंथ्रोपोलॉजी। तो दीज आर सम contributions of LP विद्यार्थी के मतलब इन फील्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्रेंड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी, ये भी एक मेजर इनका कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी पे, अर्बन एंथ्रोपोलॉजी पे, जिसपे स्पेसिफिकली इन्होंने रांची की जो 2 स्टडी की थी। एक तो था कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रांची, कल्चरल कंटूर्स ऑफ रांची भी किया था, कल्चरल कंटूर्स ऑफ बिहार एंड कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रांची ये था। देन सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया में भी कुछ फोक अर्बन कॉन्टिनम का इन्होंने एक स्टडी किया था। मीन्स सैक्रेड कॉम्प्लेक्स तो स्टडी किया ही था, उसके साथ साथ कुछ और भी इनकी स्टडी हुई थी हिंदू गया जो बुक थी, जिसमें कि साइकोलॉजिकल स्टडी भी की थी इन्होंने, और माले ट्राइब की और यहाँ पर सैक्रेड कॉम्प्लेक्स की स्टडी भी की थी। देन जो सैक्रेड जो सेंटर्स हैं वहाँ पे रूरल पीपुल जो है आते हैं अपने विलेजेस से, और अर्बन एरिया में जो गया जो है एक रिलीजियस सेंटर था, वो अर्बनाइज्ड हो गया था। तो कैसे वो अर्बन सेंटर में रूरल पीपल्स आते हैं, उनके बीच में कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो फोक अर्बन कॉन्टिनम जो कॉन्सेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था, उसको भी टेस्ट किया था इस बुक में उन्होंने। तो अर्बन एंथ्रोपोलॉजी में इनका इस तरह योगदान है। इसलिए और इस तरह भारतीय नगर एक बुक लिखी थी हिंदी में 1966 में, इसमें भी इन्होंने जो है भारतीय नगर रांची की बात की थी, और इसमें कैसे अर्बन एरियाज में कल्चर डेवलप होता है, ओरिजिन कैसे होती है, ये सारा कुछ इन्होंने स्टडी किया। देन कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रांची, ये स्पेसिफिकली रांची के ऊपर है, और इस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या फर्क पड़ा रांची पे, अर्बनाइजेशन का क्या फर्क पड़ा वहाँ के ट्राइबल और कास्ट सोसाइटी पे, इस पे स्टडी है। देन सोशियो कल्चरल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, a case study of tribal बिहार, ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इनका स्टडी है कि जो आफ्टर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कैसे जो वहाँ की ट्राइबल सोसाइटीज थी उनके समाज पर, उनके कल्चर पर
क्या उसका प्रभाव पड़ा, ये सारा कुछ इस बुक में किया हुआ है। Then some articles are also written in case of urban industry anthropology, जैसे कि थिंकिंग अबाउट सैक्रेड सिटी, ये एक आर्टिकल है जो कि सैक्रेड हिंदू गया के पहले ये पब्लिश हुआ था आर्टिकल, थिंकिंग अबाउट सैक्रेड सिटी। और सैक्रेड सिटी जो कि एक जैसा कि विद्यार्थी का मानना था कि ऑर्थोजेनेटिक और हेट्रोजेनेटिक वो ओरिजिन बताते हैं, तो सैक्रेड सिटीज को वो बताते हैं ऑर्थोजेनेटिक मीन्स ओरिजिन होती है, मीन्स अर्बनाइजेशन होता है वहाँ पर, मीन्स जो अर्ली जो सेंटर्स थे, रिलीजियस सेंटर्स थे, वो वहाँ पर मतलब वो अर्ली अर्बनाइजेशन, जो सबसे पहला अर्बनाइजेशन इन्हीं रिलीजियस सेंटर्स पर हुआ, क्योंकि जो हिंदू सोसाइटी थी वो ऐसे सैक्रेड प्लेसेस पे लोग वहाँ पर जाते थे, मीन्स एक तो सैक्रेड सिटी थी तो वहाँ पर धर्म के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए लोग जाते थे। पहले की जो एंशिएंट सोसाइटी थी, हिंदू सोसाइटी, वो ज़्यादातर जो हिंदू जो मतलब आपका धर्म है, हिंदू रिलीजन है, हिंदू बिलीव्स ऑफ लाइफ है, उस पर वो स्टडी किया करते थे। वहाँ पर मतलब वेद पुराण पर स्टडी की जाती थी, लोग धर्म की बातें करते थे, वहाँ पर जाकर डिबेट्स हुआ करते थे धार्मिक, और वहाँ के जो साधु संत या जो आश्रम में रहने वाले लोग थे उनकी मतलब अंडर वो शिक्षा दीक्षा लिया करते थे। तो इस तरह की सैक्रेड सिटीज का जो अर्ली जो सबसे पहला अर्बनाइजेशन वो सैक्रेड सिटीज का ही हुआ था, जिसमें काशी, कांची, गया और प्रयाग है, और ये मतलब ये द्वारिका है, जगन्नाथ, ये सारी जो सैक्रेड सिटीज है हमारी, या दक्षिण में रामेश्वरम है, मदुरै, ये जितनी भी सैक्रेड सिटीज हैं उन सब में कैसे अर्लीस्ट अर्बनाइजेशन हुआ, और फिर धीरे धीरे लोग वहाँ पर जब रूरल फोक इकट्ठा होने लगी या ट्राइबल पीपल्स वहाँ इकट्ठा हुए तो अर्बन के कांटेक्ट में आए, तो कैसे उनमें जो अर्बन कल्चर है उसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि अर्लीस्ट अर्बनाइजेशन इन्हीं सैक्रेड सिटीज में हुआ था। और बाद में फिर दूसरी अपॉर्चुनिटीज सेंटर्स खुलने लगे, जॉब्स या दूसरी वजहों से, क्योंकि सैक्रेड सेंटर्स बन गए तो वहाँ पर दूसरे तरह के जॉब के भी अपॉर्चुनिटीज खुल गई, क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनकी दुकानें खुलने लगी और फिर लोग उनको बेचने और इस तरह के, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज से फिर अर्बनाइजेशन बढ़ता गया और इस तरह लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। तो फोक अर्बन कॉन्टिनम को भी इन्होंने यहाँ पर स्टडी किया सैक्रेड सिटीज में, ठीक है। तो थिंकिंग अबाउट सैक्रेड सिटी एंड सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया, यहाँ पर दोनों में इन्होंने टेस्ट किया द कॉन्सेप्ट ऑफ फोक अर्बन कॉन्टिनम गिवन बाय रॉबर्ट रेडफील्ड। देन हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन रांची, यहाँ पर 1964 में, और कैसे अर्बनाइज हुआ रांची, और रांची एक हेट्रोजेनेटिक सिटी है, इसका कोई ऐसा सैक्रेड ये सेंटर नहीं रहा है, इसका जो है हेट्रोजेनेटिक सेंटर रहा है, ये अर्बनाइजेशन हुआ है क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो रांची एक ट्राइबल सिटी थी, अर्ली जो अगर पास्ट में जाए तो वो एक ट्राइबल यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंस था। और धीरे धीरे जब अर्बनाइजेशन या माइनिंग सेंटर्स खुलने लगे, इंडस्ट्रियलाइज हो गया रांची, तो फिर वहाँ अर्बनाइजेशन हुआ, क्योंकि लेबर वर्क के लिए, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, माइनिंग जो सेक्टर था वहाँ पर काम करने के लिए लोगों का मतलब आने लग गए माइग्रेट करके रूरल एरिया से, ट्राइबल एरिया से, और फिर यहाँ पर अर्बनाइजेशन तेजी से हुआ। तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स रहे हैं और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया के, ये सारा कुछ इन्होंने स्टडी किया। 1964 में ये एक आर्टिकल लिखा था, 1970 में ये बुक थी सोशियो कल्चरल इम्प्लीकेशंस एंड कल्चरल कॉपरेशन ऑफ रांची in 1969. So these are some contribution on urban industrial anthropology. Then is contribution on psychological anthropology, इसमें भी sacred complex हिंदू के और मालेर जो ट्राइब पे इन्होंने स्टडी किया था, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, इन दोनों में इन्होंने साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे भी कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया में इन्होंने जो वहाँ पे गढ़ावाल जो ब्राह्मण थे, गयावाल ब्राह्मण जो थे, उनकी जो मेंटल स्टेटस है, क्योंकि वो डिपेंडेंट थे पिलग्रिम्स पर अपनी मतलब जो उनका सब्सिस्टेंस था, मीन्स वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के जो इकोनॉमी थी उनकी, वो डिपेंडेंट थे वो पिलग्रिम्स के द्वारा दिए गए अनाज या पैसों पर, और इस तरह उनका जो एक मेंटल स्टेटस डेवलप होता है, एक पर्सनालिटी फॉर्मेशन होती है गयावाल ब्राह्मण पे,
उस पर इन्होंने स्टडी किया था। साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इनका एक योगदान है। इस तरह माले ट्राइब वो कैसे नेचर मैन का इंटरेक्शन और स्पिरिट्स पर वो बिलीव करते हैं, फिर उनकी कैसी एक पर्सनालिटी टाइप डेवलप होती है इन दिस पर्टिकुलर नेचर, जो एक एनवायरनमेंट है उसमें। तो हिमालय पे भी उन्होंने साइकोलॉजिकल स्टडी की थी। देन कंट्रीब्यूशन ऑन पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी पर इनका योगदान है। लीडरशिप इन इंडिया जो एक एडिटेड बुक है 1967। देन एक रिटन बुक है डायनेमिक्स ऑफ ट्राइबल लीडरशिप इन बिहार। देन स्टूडेंट्स अनरेस्ट इन छोटा नागपुर, ये भी 1976 पर, और इसमें ट्राइबल लीडरशिप कैसी होती है, ट्राइबल नेता और उनके काम, और उस पर जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए वो क्यों हुए, कैसे हुए, उसके पीछे का रीज़न, ये सारा कुछ उन्होंने स्टडी किया है इन बुक्स में। और एक आर्टिकल है लीडरशिप इंडिया। तो ये पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में इनका योगदान है। तो कोई एरिया छूटा नहीं है, मीन्स एलपी विद्यार्थी का योगदान बहुत बड़ा है इन केस ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में एलपी विद्यार्थी का योगदान, और इन्होंने एक हाइट तक पहुंचाया अपने कार्य से इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को। ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन फोकलोर स्टडी अगर देखते हैं तो इसमें इन्होंने फोकलोर, मालेर की फोकलोर पे स्टडी किया, मालेर ट्राइब की जो बुक थी नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की। देन फोकलोर रिसर्चेज इन इंडिया एक एडिटेड बुक है 1973 की, और एसेज इन इंडियन फोकलोर, और फोकलोर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी थे तो जो बॉम्बे में, तो उसकी इस तरह इन्होंने फोकलोर पर भी जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। और ट्राइबल कल्चर इन इंडिया जो बुक है उस पर उन्होंने ट्राइबल फोकलोर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। इन कंट्रीब्यूशन ऑन कास्ट स्टडी, इसमें शेड्यूल्ड कास्ट पे इन्होंने जो हरिजन टुडे करके एक बुक लिखी थी विद बी एन मिश्रा, और ये 1977 में पब्लिश हुई थी। हरिजन पे इन्होंने कास्ट स्टडी की थी। देन अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एंड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी पे इनका कंट्रीब्यूशन है। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया 1968। देन अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया बी एन सहाय, एंड टेंशन कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया 1968। यहाँ पर एक ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो इस तरह जो है ये इनकी स्टडीज़ हैं एलपी विद्यार्थी की। ठीक है। 1968। तो कैसे जो एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, वो हम उसके जो मतलब स्टडीज़ है उनकी जो टीचिंग्स है वो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ, मीन्स एक्चुअल फील्ड पर उतर के कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, और उस पर टेंशन कॉन्फ्लिक्ट सोशल चेंज इंडिया ये बुक थी जो कि अप्लाइड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी पर है। और दूसरी कुछ बुक्स है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की, ये टेक्स्ट बुक भी है जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी पे इनका वर्क को बताती है। Here are some questions asked in UGC NET. Given below two statements, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई है। तो sacred complex involves sacred geography, sacred practices, sacred specialist of Hindu places of pilgrimage. Yes, तो करेक्ट है। एंड सेकेंड है स्टेटमेंट, a sacred complex reflects a continuity, compromise and combination of great and little traditions. ये भी सही है। तो both statement 1 and 2 are correct. ठीक है। तो both statement 1 and 2 are true। 22 में पूछा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 16 का है, जुलाई 2016 का। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज दर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड कॉम्प्लेक्स वाज डेवलप्ड बाय एल.पी. विद्यार्थी, बिल्कुल सही है। एंड द रीजन इज the LP विद्यार्थी developed this concept in the study of Malay tribe of Bihar, जो कि गलत है। LP विद्यार्थी ने ये कॉन्सेप्ट जो हिंदू गया है उनके कॉन्टेक्स्ट में ये डेवलप किया था। पहली बार ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था इन इज स्टडी ऑफ हिंदू गया इन 1961 ये डेवलप हुआ था, क्योंकि माले ट्राइब का जो स्टडी है वो 1964 का है। एंड दिस स्टडी वाज फर्स्ट डेवलप इन हिज स्टडी ऑफ हिंदू गया पिलग्रिमेज जो है सेंटर है, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था। तो एजर्शन तो करेक्ट है, रीज़न रॉन्ग है। तो यहाँ पर लिखना होगा, देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड क्या है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन थर्ड है आर इज रॉन्ग एंड ए इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आर इज रॉन्ग मीन्स रीजन इज रॉन्ग, रीजन रॉन्ग है। ठीक है, बट ए इज करेक्ट, एजर्शन इज करेक्ट। ओके,
तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। देन यहाँ पर मैच करना है, स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन ट्राइबल एरियाज, स्टडी ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ पॉलीएंड्री एंड स्टडी ऑफ कास्ट, एंड हियर आर रिटन नेम ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, तो लुइस डुमोंट आ गया है, लुइस डुमोंट का स्टडी ऑफ कास्ट से हो जाएगा। डीएन मजूमदार ने पॉलीएंड्री पे स्टडी की थी, तो पॉलीएंड्री हो जाएगा, एडिट किया था एक बुक पॉलीएंड्री पे। देन एलपी विद्यार्थी का हो जाएगा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन ट्राइबल बिहार, जो कि रांची के ट्राइबल एरियाज में उन्होंने किया था, सोशो कल्चर इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्राइबल बिहार रांची। ठीक है, और कल्चरल कंटूर्स ऑफ रांची, कल्चरल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ रांची, ये सभी जो बुक्स थी उन्होंने ट्राइबल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ट्राइबल एरियाज में उसकी बात की थी। तो स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ट्राइबल एरियाज एलपी विद्यार्थी हो जाएगा। एंड के एस सिंह का होगा स्टडी ऑफ ट्राइबल मूवमेंट। ठीक है, तो ए का हो जाएगा थर्ड, और ए का थर्ड यहाँ पर दो जगह लिखा है, फर्स्ट में और फोर्थ में। देन बी ऑप्शन देखते हैं, बी में है स्टडी ऑफ ट्राइबल मूवमेंट, के एस सिंह होगा, फोर्थ ऑप्शन सही है, बी का फोर्थ। देन स्टडी ऑफ पॉलीएंट्री हो जाएगा डीएन मजूमदार, एंड डी का वन हो जाएगा लुइस डुमोंट। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। So this was all about the contribution of LP Vidyarthi in Indian anthropology. Thank you very much. Meet you in next video.